Good evening, everyone. Welcome back to the channel Real Edutainment. So, the topic of the day is how to prepare for chapter 1 and 2 for your unit test of the geography. So, in this video, we are going to be learning about how to write the paper, what you were supposed to understand from chapter 1 and 2. Like the first chapter is field visit, and the another one is location and extent. And this year in your grade 10, your entire geography is based on comparison between India and Brazil. So keeping that in mind, this entire PPT has been made, which has been displayed behind. So let's begin with this. So this is the first chapter, field visit. So basically, whenever we had the lecture or when we had discussed about field visit, we know the purpose of field visit. The purpose is know about new places, what you are supposed to do there, and what you are supposed not to do. So all these things we have learned in chapter 1, field visit. So we will have a quick revision. And as we move ahead, so basically, field visit is a place, is a practical theory, like is a practical subject where you do not study this in a classroom but you visit a field. So when you visit a field for gaining extra knowledge or anything, it will be known as field visit. In field visit, a student is supposed to have observation. Now an analytical mindset is supposed to be developed here. Then comes interviews. You're supposed to interview the person over there, like it can be a farmer, it can be anyone over there. If you are going in an industry, तो वहां पे जो वर्कर्स वर्क करे उनसे तुम्हें क्वेश्चन करना है. तो क्वेश्चनरी कैसे बनाते हो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. देन मेजरमेंट्स, लाइक इफ यू आर गोइंग टू अ फील्ड तो वहां पे मेजरमेंट लेना बहुत जरूरी हो जाता है. देन फोटोग्राफ्स, देन वी हैव नोट मेकिंग. ऑल दिस थिंग्स वी आर सपोज टू स्टडी अंडर द टॉपिक ऑफ फील्ड विजिट. सो तुम्हें इससे पता चलता है कि कैसे ह्यूमन एक्टिविटीज एंड एनवायरनमेंट एक दूसरे से रिलेटेड है. जैसे हम देखते हैं कि नदी के बाजू का जो एनवायरनमेंट रहता है वहां पे खेती बाड़ी ज्यादा होती है. प्लेट्यूज वाला जो रीजन रहता है वहां पे ह्यूमन माइनिंग ज्यादा करता है. तो ये सब चीजें इंटर रिलेटेड होती है. तो बेसिकली वही चीज होता है कि फील्ड विजिट से तुम्हें समझ आता है कि तुम जो एनवायरनमेंट है उसका और ह्यूमन का क्या रिलेशन होता है. Then in examination, like you will be like asked questions regarding definition of field visit, purpose of field visit, then activity done during a field visit, what precautions you are supposed to do. फील्ड विजिट के टाइम पे तुम्हारा माइंड कितना एनालिटिकल है, कितना तुम आसपास के एरिया को समझ रहे हो, ये सारे टॉपिक को तुम्हें समझना पड़ेगा. तो जब भी तुम ऐसा कोई भी चैप्टर पढ़ते हो तो तुम्हें अपने आप को उस जगह पे रखना है जहाँ पे तुम अभी तक गए नहीं हो. बट अगर तुम चाहते हो तो तुम वहां पे क्या क्या देखोगे, कौन से टाइप के क्वेश्चंस पूछने वाले हो, ये सब चीजों को माइंड में रखना है. सो फील्ड विजिट कंडक्ट किया होता है सबसे पहले प्राइमरी डेटा. प्राइमरी डेटा यानी जो फर्स्ट हैंड डेटा रहता है जो तुम खुद जाके निकाल के आते हो. बेसिकली हम जो नोटबुक्स पढ़ते हैं, टेक्स्ट बुक्स पढ़ते हैं, गवर्नमेंट का डेटा पढ़ते हैं, वो तुम्हारे लिए एक सेकेंडरी डेटा लाइक होगा बिकॉज वो तुमने खुद नहीं निकाला. बट प्राइमरी डेटा वो डेटा होता है जो तुम खुद निकालते हो, तुम्हारी खुद की अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पर बनाते हो. दैट्स गोइंग टू बी योर प्राइमरी डेटा. सो improving observation skills, first thing which you need to be good in is that observation skills are supposed to be improved. Communication skills, like if you are going to that area, तुम्हारा communication कितना अच्छा है वहां पे. Then teamwork. Then comes analytical thinking, जो लास्ट में सबको करना पड़ता है. Analytical thinking and एक अच्छा conclusion निकलना होता है. So the examiner may ask the purpose of field visit as a short note, or he can ask you to prepare a questionnaire. So basically objectives क्या क्या होता है, geographical information कलेक्ट करनी होती है. सेकेंड थिंग इज जोग्राफिकल कॉन्सेप्ट को प्रैक्टिकली समझना होता है. देखो ज्योग्राफी टेक्स्ट बुक में पढ़ते हैं तो बहुत बोरिंग लगता है, बट व्हेन वी लिव ज्योग्राफी इन रियल लाइफ इट बिकम्स वेरी इंटरेस्टिंग. द थर्ड फीचर इज नेचुरल इन ह्यूमन मेड फीचर्स में क्या डिफरेंस होता है. जैसे कि नेचुरली जो चीजें बनती है, माउंटेन्स हो सकती है, प्लेट्यूज हो सकती है, रिवर्स होती है, ऑल ऑफ दिस आर एग्जांपल ऑफ नेचुरल. वेयरएज इंडस्ट्रीज हो गए, रोड्स हो गए, बाद में खेती लोग करते हैं, वो सब ह्यूमन मेड फैक्टर्स होते हैं. Then improve observation and communication skill is also one of the objective of field visit. प्राइमरी डेटा कलेक्ट करना है जहाँ पे तुम्हें स्टैटिस्टिक्स बनाना है, बाद में तुम्हें डेटा को एनालाइज करना है. इसलिए एक नोटबुक हमेशा तुम कैरी करते हो जब भी तुम किसी भी फील्ड विजिट में जाते हो. देन कम्स रिपोर्ट बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन. सब हो जाता है, उसके बाद एक रिपोर्ट बनाना रहता है. दैट्स द लास्ट पार्ट. जैसे तुमने क्या क्या ऑब्जर्व किया, तुमने कैसे ट्रैवलिंग की, देन
which kind of people you met in your journey, then which new thing you observed. All these things will be noted in your report. So whenever the question asks, state the objectives, write them in points instead of paragraphs. So this is the thing about, like, whenever you are writing any history paper or geography paper, your answer should be written in points and do not go for the paragraphs. Now, steps on field visit, like selection of a place, then we go for preparation, then the actual visit happens, then observation and data collection, then क्वेश्चनरी सपोज टू बी मेड. क्वेश्चनरी क्यों बनाना रहता है? बिकॉज कई बार तुम अलग अलग फार्मर से मिलते हो, तुम्हें एक प्रॉपर डेटा बनाना रहता है. तो जितने भी तुम फार्मर्स को मिलने वाले हो, सबको एक टाइप का ही क्वेश्चन पूछना है तुम्हें. अगर तुम अलग अलग क्वेश्चन पूछते हो तो एक प्रॉपर डेटा नहीं बनेगा. सो दैट्स द रीजन यू आर सपोज टू मेक अ क्वेश्चनरी. जैसे इफ यू आर विजिटिंग एनी बिस्किट कंपनी, सो योर क्वेश्चन शुड बी हाउ मेनी एम्प्लॉयज आर देयर, which products are you making, how do you advertise, then व्हाट इज योर सप्लाई चेन, कौन से कंट्री में आप एक्सपोर्ट करते हो, ऐसे क्वेश्चनरी बनाना रहता है. सो वो क्वेश्चनरी के बेसिस पे भी तुम्हें मार्क्स मिलते हैं एग्जाम में. देन रिपोर्ट राइटिंग इज द लास्ट स्टेज. सो दिस सीक्वेंस इज वन ऑफ द favorite questions of Maharashtra board. Then next is preparation before the field visit. Before visiting the any place, select a suitable location. Then comes describe the objectives, like why you want to go there, so decide objectives. Third, prepare a questionnaire. Carry necessary materials. अब ये भी पूछा जा सकता है कि कौन से necessary materials होता है, जैसे कि first aid हो गया, then it can be medical kit, it can be a notebook, it can be compass, so many things can be there. Divide work among group members. If you are going in a group, you are supposed to divide the work. Then good preparation makes the field visit successful, because without preparation you are going to lag somewhere. That's the reason all the people who go on a field visit, they prepare beforehand. Then which materials are supposed to be carried? Notebook, pen or pencil, then camera, water bottle, all these things are supposed to be carried with you. Then first aid kit, this is the most important thing. मेजरिंग टेप इफ रिक्वायर्ड, अगर तुम किसी खेत में जा रहे हो या कोई भी जमीन का ऑब्जर्वेशन करने जा रहे हो, दिस थिंग इज सपोज्ड टू बी मेंट इन योर बैग. देन नेक्स्ट इज क्वेश्चनरी. अ क्वेश्चनरी इज अ लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस प्रिपेयर्ड whenever you are visiting any place. जैसे यहाँ पे इन्होंने एक एग्जांपल दिया कि तुम एक फार्मर के पास जा रहे हो, उसके खेत में जा रहे हो. तो अब देखो, तुम फार्मर के पास जा रहे हो तो तुम्हारा क्वेश्चनरी भले इंग्लिश में हो, बट कॉन्वर्जेशन वहां की लोकल लैंग्वेज होगी उसमें करना है, जैसे मराठी हो सकता है, तो वो लैंग्वेज में तुम्हें उनके साथ कॉन्वर्सेशन करना है. सो विच क्रॉप्स डू यू ग्रो? सेकंड, विच इरिगेशन मेथड डू यू यूज? विच प्रॉब्लम्स डू यू फेस? व्हाट प्रॉब्लम्स डू यू फेस? देन विच फर्टिलाइजर्स डू यू यूज? एग्जाम्पल बाद में दूसरा एक एग्जाम्पल है फैक्ट्री का. विच व्हाट प्रोडक्ट्स आर मैन्युफैक्चर्ड? विच रॉ मटेरियल्स आर यूज्ड? हाउ मेनी वर्कर्स आर एम्प्लॉयड? देन व्हाट मेजर्स आर टेकन टू कंट्रोल पॉल्यूशन? सो अगर तुम किसी भी फील्ड में जा रहे हो, तुम्हारा ऐसा टारगेट है कि आसपास के 5 इंडस्ट्रीज को कवर करना है, एंड सबका जो लाइक फैक्ट्री है, उन सबका जो प्रोडक्ट बन रहा है वो एक जैसा है, तो यहाँ पे ये सेम क्वेश्चंस होने चाहिए, क्योंकि वही बेसिस पे तुम एक प्रॉपर सर्वे कंडक्ट कर पाओगे. फिर जो दूसरा आता है रिपोर्ट राइटिंग, जो लास्ट में होता है, इट्स गोइंग टू बी इन द लास्ट. सो आफ्टर कंप्लीटिंग द विजिट, students are supposed to prepare a report. In that report, title should be an appropriate one. Then objectives, place visited, observations, findings, conclusion. This was it. Then always write reports under proper heading. Heading should be given. Now environmental responsibility, like I told you कि field visit में जाते हो तो तुम्हें ये तो पता है कि क्या करना है, but क्या नहीं करना है वो भी बहुत important चीज हो जाती है. So you need to avoid littering. यहाँ पे वहाँ पे कचरा नहीं फेंकना है. Second, you need to respect the local people. I think when we were studying the chapter of history, उसमें हमने पढ़ा था कि जो local peoples है तो उनके sentiments को hurt नहीं होना चाहिए. उस तरह से तुम्हें अपना historical and geographical work करना है. Keep surrounding clean. This is the most important thing. अगर ये सब चीजें हम करने लग जाते हैं तो आपको आप जो भी हम हमारे सराउंडिंग में मॉन्यूमेंट्स देखते हैं, किले देखते हैं, they will be like very beautiful, they will be maintained, but this is the thing which we all are not doing. Then keep the surrounding clean, follow the teacher's instruction. If you do not follow the teacher's instruction, हो सकता है कि तुम किसी इश्यू में आ सकते हो. Then
कौन से टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, लाइक एमसीक्यू क्वेश्चंस हो सकते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हो सकते हैं, देन सीक्वेंस क्वेश्चंस, पर्पस ऑफ फील्ड विजिट, क्वेश्चनरी बनाना हो सकता है, रिपोर्ट राइटिंग हो सकता है, कौन सी चीजों को तुम कैरी कर सकते हो और कैसे तुम वो एरिया को बचा सकते हो, दैट्स लाइक मैनेजिंग लिटर्स एंड ऑल। नाउ कम्स द चैप्टर 2। एज आई टोल्ड कि ये साल का जो तुम्हारा पूरा सिलेबस है ग्रेड 10 में, इट्स कंपैरेटिव स्टडी बिटवीन इंडिया एंड ब्राजील। उसमें क्या डिफरेंस तुम्हें देखने मिलते हैं, क्या सिमिलरिटीज देखने मिलती है, वो पूरा चैप्टर यानी जो तुम्हारा टेक्स्ट बुक है उसके अंदर जितने भी चैप्टर्स है सब इसी चीज के बारे में डिस्कस करते हैं। सो हियर यू आर सपोज टू कंपेयर द लोकेशन एंड एक्सटेंट ऑफ इंडिया एंड ब्राजील, लाइक इंडिया का कितना लेटिट्यूड्स है और कितना लॉन्जिट्यूड्स है एंड सामने ब्राजील का कितना है, ये सारी चीजें तुम्हें यहाँ पे डिस्कस करनी है। देन विच आर द फैक्टर दैट इन्फ्लुएंसेस क्लाइमेट, लाइक हम जो इंडियंस है, हमारा जो क्लाइमेट है टोटली अरेबियन सी से, बे ऑफ बंगाल से, हिमालय से इन्फ्लुएंस होता है। बट ऐसे बहुत सी चीजें हैं जो ब्राजील में नहीं देखने मिलती और जो इंडिया में देखने मिलती है, जैसे स्नोफॉल हमारे यहाँ पे होता है बट ब्राजील में नहीं होता। तो कौन से क्रॉप्स ब्राजील में ग्रो होते हैं, कौन से नहीं होते, उसके पीछे भी ज्योग्राफिकल रीजंस होते हैं। तो सेकेंड जो चैप्टर है वहां से तुम्हारा मेन ज्योग्राफी बिटवीन इंडिया एंड ब्राजील स्टार्ट्स। उसके बाद जितने भी चैप्टर्स है वो वाइल्ड लाइफ के रिलेटेड होंगे। इट कैन बी रिगार्डिंग क्लाइमेट, इट कैन बी रिगार्डिंग ह्यूमन पॉपुलेशन, इट कैन बी रिगार्डिंग सेटलमेंट। तो ये जो चैप्टर है दैट्स द बेस ऑफ एंटायर ज्योग्राफी सिलेबस विच यू आर गोइंग टू रीड अहेड। सो वहां पे लोकेशन कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं, क्लाइमेट, नेचुरल वेजिटेशन, ट्रांसपोर्टेशन, स्टैंडर्ड टाइम। स्टैंडर्ड टाइम हमने ग्रेड 8 एंड 9 में पढ़ा था कि हर एक कंट्री का एक फिक्स टाइम होता है, उसे हम स्टैंडर्ड टाइम कहते हैं। जैसे हमारा जो स्टैंडर्ड टाइम है वो मिर्जापुर के बेसिस पे डिसाइड हुआ है 82.5 डिग्री ईस्ट के बेसिस पे। तो इसके कारण हमें पता चलता है कि कौन से डिफरेंसेस है हमारे में और ब्राजील में। देन व्हाट इज लोकेशन, लाइक लोकेशन कौन से बेसिस पे, लोकेशन हमें बताता है कि कोई भी कंट्री अर्थ पे कहाँ पे लोकेटेड है, उसका लेटीट्यूड कहाँ पे, उसका लॉन्जिट्यूड कहाँ पे एंड उसका हेमिस्फीयर कितना है। लाइक वी हैव नॉर्थ हेमिस्फीयर एंड देन वी हैव सदर्न हेमिस्फीयर, ईस्ट हेमिस्फीयर वी हैव, देन वी हैव वेस्ट हेमिस्फीयर। तो कोई भी कंट्री कौन से हेमिस्फीयर में आता है वो हमें पता चलता है व्हेन वी स्टडी द लोकेशन ऑफ एनी कंट्री। जैसे देखो ज्योग्राफिकल लैंग्वेज में अगर हम ये कहने जाए तो ये बेसिक चीजें होती है, जैसे कि एक प्राइम मेरिडियन होती है जो 0 डिग्री पे है एंड दिस 0 डिग्री डिसाइड्स कि तुम्हारा कंट्री अगर ईस्ट के साइड है तो उसका टाइम आगे रहेगा एंड इफ योर कंट्री इज ऑन द वेस्ट साइड द टाइम विल बी बिहाइंड, which is this is one of the most important concept of the chapter, the comparison. So when we talk about India's location, if you are asked कि इंडिया कौन से हेमिस्फीयर में आता है, your answer should be northern hemisphere. सेकेंड ईस्टर्न हेमिस्फीयर में भी है। देन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हमारे यहाँ से पास होता है, वेरएस ब्राजील में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन पास होता है। और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन हो गया, बाद में ब्राजील हो गया, वो सब इक्वेटर के काफी पास है और हम इक्वेटर से बहुत दूर है। सो द सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया इज इंदिरा पॉइंट। ये शायद तुम्हें एमसीक्यू में आ सकता है, फिलिप्स में भी आ सकता है। सो यू नीड टू रिमेंबर कि कौन सा पॉइंट इंडिया का सदर्न मोस्ट पॉइंट है। सो आंसर शुड बी इंदिरा पॉइंट। जब भारत में बहुत ज्यादा बारिश हुई थी और जब सी लेवल इंक्रीज हो गए थे, ये पॉइंट पानी में सबमर्ज हो गया था, डूब चुका था। क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड रिगार्डिंग हेमिस्फीयर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इंदिरा पॉइंट एटसेट्रा। अब जब हम ब्राजील की बात करते हैं उसमें कौन सी चीजें तुम्हें याद रखनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स इन नॉर्दर्न एंड सदर्न हेमिस्फीयर, दोनों हेमिस्फीयर में आता है वो। देन ब्राजील लाइज इन द वेस्टर्न हेमिस्फीयर। द इक्वेटर पासेस थ्रू द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ ब्राजील। तो इक्वेटर कहां से पास होता है, नॉर्थ पार्ट ऑफ द ब्राजील। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन पासेस थ्रू ब्राजील। तो ये जो इमेजिनरी लाइन का यहाँ पे जो डिफरेंस है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हमारे कंट्री से पास होता है एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन ब्राजील से पास होता है। अब ये क्लाइमेट एंड सीजन को इन्फ्लुएंस करता है। जैसे हमने 8th और 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा था कि कोई भी एक लेटिव हुई लाइन रहती है जिसे हम लैटिट्यूड कहते हैं, वो इन्फ्लुएंस करता है कि तुम्हारे कंट्री में कैसे टाइप का क्लाइमेट थ्रू आउट द ईयर रहेगा। सो ऑल दिस लाइंस मेक इट पॉसिबल कि कौन से टाइप का वेदर रहेगा, क्लाइमेट रहेगा, वहां पे कौन से टाइप का क्रॉप ग्रो होगा। नाउ एक्सटेंट ऑफ अ कंट्री मींस हाउ मच एरिया इट कवर्स फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, यानी नॉर्थ से लेकर साउथ कितना किलोमीटर्स में वो कंट्री है। अ पर्सन कैन नो थ्रू दिस। एंड फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट a greater longitudinal difference affects local time. Longitude means standing line. तो अगर बहुत सारे ऐसे longitudes हैं तो countries vast from east to west, तो उसके कारण वहां का जो local time है वो बहुत ज्यादा affect हो सकता है, which is why countries may have one or more standard times. Fortunately our country has just one
लोकल टाइम और वी कैन से 1 स्टैंडर्ड टाइम एंड इसके कारण हमें कन्फ्यूजन नहीं होता। जैसे अभी यहाँ पे लाइक राइट नाउ अगर हमारे कंट्री में 7:21 हुआ है, लाइक हमारे स्टेट महाराष्ट्र में 7:21 हुआ है, तो आसाम में, अरुणाचल प्रदेश में वहां पे भी 7:21 टाइम हो सकता है। सो यही चीज है कि हर एक लॉन्जिट्यूड, हर एक लैटिट्यूड वहां के एरिया को इन्फ्लुएंस करता है, उधर की सीजन को इन्फ्लुएंस करता है। स्टैंडर्ड टाइम यानी जब पूरा कंट्री एक ही टाइम फॉलो करता है, जैसे हमारा कंट्री एक ही स्टैंडर्ड टाइम को फॉलो करता है। ब्राजील फॉलोज मोर देन वन स्टैंडर्ड टाइम बिकॉज इट स्ट्रेचेस मच फर्दर फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। Countries vast from east to west, that's the reason they follow more time zones. When writing this comparison, explain why the number of time zones differs, not just that they are different. Explain, like मैंने अभी जैसे बताया कि ईस्ट टू वेस्ट में इनका लोकेशन बहुत एक्सटेंड करता है। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट चीज है, मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपैरिजन क्वेश्चंस जो तुम्हें आ सकते हैं, दैट कैन बी आस्क्ड इन योर एग्जामिनेशन, दैट कैन बी लोकेशन, लैटिट्यूड वाइज, लॉन्जिट्यूड वाइज, देन है नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट, देन एक्सटेंड बाउंड्रीज ऑफ इंडिया एंड ब्राजील, कौन से कंट्री के साथ उसका बाउंड्रीज है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडिया एंड ब्राजील। जैसे देखो ब्राजील भी फॉरेन पावर से रूल हुआ था, इसी तरह से हमारा जो कंट्री है वो भी फॉरेन पावर से रूल हुआ था, तो सिमिलरिटी हो गई। अब उनको कब आजादी मिली, कब वहां पे एक रिपब्लिक गवर्नमेंट बनती है, उसका ईयर, डेट, ये सब याद रखना है एंड एग्जाम में मेंशन करना है, बिकॉज ये हर एक डेटा, हर एक डिटेल मार्क्स कैरी करते हैं। फिर इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम क्या होता है, ब्राजील का स्टैंडर्ड टाइम क्या होता है, तो ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो चैप्टर 2 में से पूछे जा सकते हैं। देन comes how to write any geography paper. If the questions are straight, write only the required answer. Do not go for additional one because you need to save the time. If it asks give geographical reasons, write only valid reason. Do not go for extra reason. If your answer is getting end, like if it's ending in just 2 to 3 points, end it there. Do not go for additional points. Never write extra information because time is the limit. Use point wise answers instead of writing the answer in long paragraphs. Then each point should explain one idea. कई बार तुम ऐसा करते हो कि एक की जो आइडिया उसको तुम 2 पॉइंट्स में लिखते हो, ये सोच के कि मेरा आंसर बहुत बड़ा हो जाएगा एंड उसके कारण तुम्हें मार्क्स मिल सकते हैं, देन यू आर टोटली रॉन्ग। ये चीज को अवॉइड करना है बिकॉज हर एक पॉइंट का एक अलग स्पेसिफिक मीनिंग होना चाहिए। देन कम्स दिस मेक्स द आंसर इजी फॉर द एग्जामिनर टू रीड। एंड देखो एग्जामिनर को जितना अच्छे से तुम्हारा आंसर रीड करने मिलता है उतने अच्छे तुम्हें मार्क्स मिल सकते हैं। सो डू नॉट कीप रिपीटिंग द सेम पॉइंट इन डिफरेंट वर्ड्स। Then underline important keywords. After your paper is done, recheck the paper और तुम्हें लग रहा है कि कहीं पे की पॉइंट है तो उसे अंडरलाइन करते जाओ। यूज पेंसिल, डू नॉट गो फॉर पेन। लैटिट्यूड, लॉन्जिट्यूड, हेमिस्फीयर, सपोज ऐसे कीवर्ड्स आते तो उसे अंडरलाइन करना है। फिर स्टैंडर्ड टाइम, इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, और इनका डिग्रीज भी याद रखना है। फिर इंदिरा पॉइंट, ब्राजील, इंडिया। Then underlining helps the examiner identify important concepts quickly and उससे पता चल जाता है कि तुमने आंसर बहुत वैलिड पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा है, तुमने बहुत एक्यूरेट डेटा उसमें लिखा है। If there is distinguish between, never go for a paragraph form, make a proper table with 2 columns, India, Brazil, and then write the points. Draw a proper table with 2 columns, write one corresponding point opposite another. जैसे ब्राजील कौन से हेमिस्फीयर में, इंडिया कौन से हेमिस्फीयर में, दोनों के अलग अलग पॉइंट्स लिखने तुम्हें। जैसे इन्होंने यहाँ पे देखो इंडिया एंड ब्राजील का कंपैरेटिव स्टडी बताया, जहाँ पे इन्होंने लिटरली ऐसे बताया हमें कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, एंड दिस इज इन नॉर्दर्न एंड सदर्न हेमिस्फीयर, वी हैव 1 स्टैंडर्ड टाइम, दे हैव मेनी स्टैंडर्ड टाइम। देन हाउ टू राइट शॉर्ट नोट्स, ऑलवेज स्टार्ट विद द डेफिनेशन, देन 3 to 4 important points, importance or conclusion. All your answers should be ending with a conclusion because conclusion is the proper way to end any answer. So presentation matters. Leave one line after each answer. Like I'm not telling that literally leave one line, but you need to maintain a neat work. So जहाँ पे तुम्हें लग रहा है लाइन छोड़ने ऐसी लाइन छोड़ दो। Write clear headings, underline keywords, avoid excessive cutting or overwriting. And अगर कोई mistake हो भी जाती है, just put a line. Do not scribble that one. Keep handwriting neat and readable. A neat answer sheet is going to create a good impression and it may lead you to get good marks. So this was it for the day.
So as I told you, study very nicely, then follow a proper plan, underline the keywords, understand the basic concepts. Do not go for the concept of rectification, but understand the geography using AI, using your own brain, have conversation with your teachers and your friends. Thank you.